Hello students, previously we have discussed some basic concepts of PLC in which we have discussed the companies which are offering the PLC modules that are available in market, and secondly we have discussed some basic concepts of relay and its working and the reason that why to use PLC over relays. Okay, in today's session we will discuss the block diagram of PLC which includes many sections. Here the first slide is that when to use PLC. So one question that is came into our mind that when to use the PLC and how we can use it for any application. Imagine you have a light connected to a switch. To understand it properly, we have taken an example of manual process. As you can see here, the manual process in which a light is connected with the switch. This is very simple on-off operation. When we press press the switch, then a light will glow. But if we want to include one feature, अगर हम इसमें कोई feature include करना चाहें, जैसे कि अगर यही जो light है, it should get on after 30 seconds. Okay, means whenever we press the switch, जब भी हम switch को press करेंगे, then जो light है वो 30 seconds के बाद on. तो हमें अगर ये मैनुअल प्रोसेस में देखना होगा तो हमें पूरी वायरिंग को चेंज करना होगा अपनी डिमांड के हिसाब से, लेकिन अगर हम इसी को पीएलसी के बेस पे बनाते हैं देन वी डोंट नीड टू चेंज द वायरिंग विल रिमेन सेम. ओके, दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पीएलसी दैट अगर हमारी कोई डिमांड, अगर हमारी जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से अगर कुछ हमने चेंजेस करने हैं देन वी डोंट नीड टू change the whole wiring, we just need to change the program that is to be entered in the PLC के प्रोग्राम में चेंज करेंगे और उसके हिसाब से इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में वायरिंग कर देंगे, देन वी विल change the whole wiring of the system, whole functioning of the system, not wiring. Okay, next we are having the block diagram of PLC. In the block diagram of PLC, we are having mainly three sections which are considerable. First is the power supply, second is the input module, and third is the output module. Besides it, we are having the sections for memory and programming device. Its block diagram is very much identical to the block diagram of a computer. Okay, on the left side, any input which we want to connect with the input of the PLC, such as push button switch, liquid level switch, limit switch, and pressure switch, or any input sensing devices that are not to be directly connected with the PLC of the CPU of the PLC, that are need to be firstly connected with the input module. Okay, similarly, if we want to connect any analog or as well as digital device as an output, then we need to connect it first with the output module. Okay, because the CPU, जो CPU है PLC का, that is communicating with the input and output modules. It is not capable of controlling the push button switch or anything which is connected as input and the motor that is connected or anything which is connected at output directly. Okay, it is just a intermediate. These two modules are the intermediate which are providing protection as well as make the communication possible between the output and input devices. Similarly, it is having some memory for storage which can be categorized in for fixed memory and alterable memory, and some programming devices also needed, handheld programmers and but जो आज हम previous जो पहले यूज होते थे that are the handheld programmers, but recently जो यूज हो रहे हैं that are the computer programs. उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, लैडर प्रोग्राम्स हो गए, स्पेशल फंक्शन चार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसका प्रोग्रामिंग मेथड है जिसके बेस पे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं. अब इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम में क्या हम करेंगे, PLC इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल के बारे में. अब यहाँ पे है हमारे पास ये वाला, दिस इज द
ब्लॉक डायग्राम फॉर द इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में 2-3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द ब्रिज रेक्टिफायर, सेकंड इज द Zener diode level detection, and the isolator circuit and logic circuit. ओके, अब मान लो हमने कोई स्विच कनेक्ट किया है इनपुट पे, देन और having some signal over there, okay, which can be a digital or AC input signal, then it should be converted into a DC form. okay, DC form bridge convert कर देगा उसको, और प्रोटेक्शन के लिए Zener diodes लगाए हैं, और एक जो मेन हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज द आइसोलेटर, जिसको हम ऑप्टो आइसोलेटर भी कहते हैं। इट आइसोलेट्स द इनपुट फ्रॉम आउटपुट। ओके, how it isolates from input from output, that is by the optical signal, so that's why it is also called as optical isolator. And a logic circuit is there which identifies the number of inputs which are to be connected with the PLC, with which input we need to control the output. मान लो हमने इनपुट पे 2-3 स्विचेस लगाए हैं और आउटपुट पे हमने एक रिस्पेक्टिव डिवाइसेस कंट्रोल करवानी है, तो किस स्विच के साथ कौन सी डिवाइस जो है ऑपरेट होगी, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द लॉजिक। ओके, और इसी जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, इसी का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, as you can see here, this is a bridge rectifier. 4 diodes are there which converts AC into DC. Zener diode is for protection circuit, and here you can see it is a optocoupler. In the optocoupler we are having a light emitting diode and a photo transistor. Now you can see कि अगर सप्लाई में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सर्ज आती है, इलेक्ट्रिकल सर्ज आती है, तो वो इस पूरे CPU को, क्योंकि ये यहाँ से जो भी कनेक्ट होगा दिस इज टू इनसाइड टू द CPU, तो वो CPU को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये पूरा एक आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा इस पूरे सेक्शन को और इस पूरे सेक्शन से। ठीक है, तो जो भी लॉजिक सर्किटरी की जो इनपुट जाएगी प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर डेलिकेट होते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन 5 वोल्ट सप्लाई PLC CPU, एंड अगर उस सप्लाई में ज़रा सी भी कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो इसी कारण यहाँ पे ऑप्टो आइसोलेटर यूज किए जाते हैं। ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग द आउटपुट मॉड्यूल सर्किट। इन द आउटपुट मॉड्यूल we are having the same things just like logic isolator, and this is an electronic switch. Electronic switch by means कि जो हमने आउटपुट पे कंट्रोल करवानी है चीज, that is to be connected with this. Okay, so it is just a opposite of the input module. Okay, if here we can see कि जो इनपुट मॉड्यूल में लास्ट में लगा था ब्लॉक, यहाँ पे वो फर्स्ट लग गया, और अगर सेकंड लास्ट जो था यहाँ पे वो सेकंड बन गया। ओके, फ्रंट से सेकंड हो गया। ठीक है जी, तो इट विल बिकम ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इनपुट मॉड्यूल। जो भी हमने इनपुट पे डिवाइस कनेक्ट करनी है वो पहले इन्हीं के साथ कनेक्ट होगी। सिमिलरली जो भी हमने आउटपुट के साथ डिवाइस कनेक्ट करनी है दैट इज नीड टू बी कनेक्टेड विद द आउटपुट मॉड्यूल। ओके, अब है हमारे पास PLC पावर सप्लाई सेक्शन। PLC पावर सप्लाई है जो दैट इज SMPS, दैट इज स्विच टू मोड पावर सप्लाई। स्विच टू मोड पावर सप्लाई जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी यूज की जाती है, विच इज हाईली एक्यूरेट। उसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग दी लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थ। जो हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं AC सप्लाई की, वो हमने प्रोवाइड किसको की है, लाइन कंडीशनर सर्किट। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन SMPS, वी कैन से दिस होल इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द SMPS। अब लाइन कंडीशनर क्या काम करता है कि अगर कोई पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, वहां से जो पावर ट्रांसमिट होके आ रही है उसमें कोई डिस्टरबेंस है या कोई कोई पीक्स जनरेट हो रही हैं सप्लाई में, ठीक है, सप्लाई जो है वो एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ हमारे एंड पे कोई फ्लक्चुएशन हो रही है पावर सप्लाई में, तो ये लाइन कंडीशनर उसको ओवरकम कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो वेव फॉर्म है उसको प्रॉपर स्मूथ कर देगा, दैट इज टू बी प्रॉपर प्योर AC फॉर्म। ओके, नाउ लेट वी हैव कंसीडर्ड कि जो हमारे पास L1 L2 G थी इनपुट पे, देन इट बिकम्स T1 T2 एंड G।
सेम ही है, that is line, neutral and ground, but we have given some specific name, that is T1, T2 and G. अब ये जो हमारी AC सप्लाई है that is given to the converter और rectifier. Rectifier क्या करते हैं, that converts the AC to DC. So here we have the two phases. First is positive 0, that is for waveform in DC form. Okay, this is the shape of a DC form, DC waveform. And we are having three phases, that is positive, 0 and negative, and ground is going in the same way. Okay, next is the filter. Filter क्या होते हैं, जो भी ये जो ripples आ रहे हैं यहाँ पे, as you can see these are the ripples. Okay, तो ये ripples को भी स्मूथ कर देते हैं. स्मूथ यहाँ पे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का जो सर्किट होता है वो उसको स्मूथ करके एक प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म में ले आता है. ठीक है, अब ये स्ट्रेट फॉर्म में डीसी आ गई, यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉर्म में डीसी है, और यहाँ से अगर हमें इसको रेगुलेट किया जाता है यूजिंग दी रेगुलेटर. सपोज वी नीड्स +5 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलेटर किस टाइप का लगा होगा, 7805, दैट इज फॉर +5 वोल्ट, इट जनरेट्स +5 वोल्ट. अगर हमें -5 वोल्ट चाहिए होगा तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा होगा 7905. ओके, क्योंकि जो रेगुलेटर पॉजिटिव वाले होते हैं सप्लाई के लिए वो होते हैं 7805 और नेगेटिव के लिए 7905. और वन मोर थिंग, अगर पावर फेलियर हो जाता है, सपोज कि ये पूरा सर्किट काम करना बंद कर गया, देन वी आर हैविंग अ बैटरी बैकअप सिस्टम आल्सो अवेलेबल. ओके, दिस इज अ पावर सप्लाई, PLC power supply, or generally we can say it is an SMPS, that is switched mode power supply. Next we are having the PLC CPU. Its circuit is the PLC block diagram, CPU block diagram is very much identical to that of a computer's block diagram. क्या होता है उसमें, एक कंट्रोल यूनिट है, ALU है, रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में. ओके, और उसमें एक रोम होती है विद फिक्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है बर्न होगा जाके. इसमें भी जो भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे दैट इज टू बी बर्न इनटू द रोम. और एनालिसिस के साथ हमारे साथ क्या क्या कनेक्ट है, यहाँ पे मेन है हमारा इनपुट स्कैन ब्लॉक और आउटपुट स्कैन ब्लॉक. एंड विद दिस इनपुट स्कैन ब्लॉक इनपुट मॉड्यूल इज कनेक्टेड. अब इनपुट मॉड्यूल के साथ सपोज हम कुछ स्विच लगाया है, अगर सेंसर लगाया है, तो वो इस तरह से स्कैन करेगा, दैट इज इट इज फर्स्ट गोइंग टुवर्ड्स द इनपुट मॉड्यूल and then it is going towards the input scan block. It scans the input ladder and then it is going towards the logical scan program. उसके according वो program के साथ उसको compare करेगा and then controls the respective output that is connected with the output module. Okay, so it will be work like input module, it is going to input scan block, then it is going to logical scan program, then it is going towards output scan block and then output module. Okay, next it is these are some differences between input and output module. These are some points which I have mentioned here, just read it out. Okay, so basically three phase होते हैं किसी भी PLC को काम करने के लिए. फर्स्ट होता है कि स्कैन करना मीन्स कि इनपुट के ऊपर अगर हमने स्विच या सेंसर कनेक्ट किया है तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आती हैं, अगर हम उसमें सेंसर की वैल्यू कुछ सेंस करती है किसी की प्रेजेंस को. ओके, एंड सेकेंडली अगर उसमें स्विचेस में कुछ चेंजेस आती हैं, ऑन या ऑफ होता है, देन अकॉर्डिंगली इट विल चेंजेस द स्टेटस ऑफ द आउटपुट. ठीक है, एक में स्कैन होगा और उसमें दूसरे फेस में स्टेटस चेंज होगा. ठीक है, पहले ये रीड करेगा इनपुट को, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को वर्क करवाएगा. ठीक है, PLC प्रोग्रामिंग. PLC को प्रोग्राम करने के लिए बेसिकली 3 हमारे पास मेथड्स हैं, और वो हैं, एक तो है जी ग्राफिकल फॉर्म. ग्राफिकल फॉर्म को हम लैडर लॉजिक कहते हैं, विच इज वेरी मच पॉपुलर. सेकेंड इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, FBD. थर्ड इज द सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट. दीज आर सम methods by which we can program the PLC. First one, that is ladder logic, which is very much popular. और यही प्रोग्रामिंग जो है इट इज़ वेरी बेसिक लेवल, बहुत बेसिक लेवल की है, इजीली आप समझ सकते हो. आपके सेशन जो आपका करिकुलम है
उसमें भी लैडर लॉजिक ही आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैमिलराइजेशन विद पीएलसी मॉड्यूल, आपको पीएलसी मॉड्यूल के बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए मैंने कुछ पिक्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, पिक्चर्स हैं पीएलसी की। ये कंपनी है डेल्टा कंपनी, इट इज ऑफ डेल्टा कंपनी पीएलसी। ऐसी होती है पीएलसी देखने में, ठीक है। यहाँ पे ये दिस इज द इनपुट मॉड्यूल as I told you earlier, and this is the output module. Okay, and we are having three indications, that is power, run and error. Okay, power is whenever we give the supply to this module, then it will glow, this light will glow, and indicator light run will glow when the PLC under run condition, and if we are having some error in the program, then this light will glow. Okay, as we have done earlier, the SMPS block diagram, this is the real SMPS. The same thing जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा सप्लाई का SMPS का मॉड्यूल, ये कंप्यूटर्स के CPU में भी लगा होता है, ठीक है। तो यही सप्लाई जो है एक्यूरेट होती है, इसी को यूज किया जाता है PLC को ऑपरेट करवाने के लिए। नेक्स्ट है, दिस इज सम पिक्चर्स ऑफ दैट। अब यहाँ पे है, अगर हम इसको PC के साथ कनेक्ट करना है तो ये है उसका, this is the RS232, or you can say this is of DB9 connector, that is to be connected with the PC computer, or this is to be connected with the PLC. Okay, so by using these two connectors, okay, we can connect a PLC with the computer. Okay, अभी रिसेंटली अगर हम इसको कनेक्ट करना चाहें तो एज द USB पोर्ट्स ही होती हैं कॉमनली, तो USB पोर्ट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है हमारा ऑपरेशन सिंकिंग एंड सोर्सिंग का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे इनपुट के साथ PLC के कुछ भी कनेक्ट करते हैं हम, आपको सिंकिंग एंड सोर्सिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। Here I have mentioned the four kinds of sourcing circuits. यहाँ पे जो पहला सर्किट है, very easy. Okay, here you have the input sensor. This is a PLC. From the inside we are having a input sensor. और अगर हमने syncing operation में लगाना है, then it should be connected with the negative. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे syncing हो रही है. This is a syncing input. अगर input पे कुछ लगाया है तो वो उसको sync कर रहा है। और अगर हमने आउटपुट पे देखना है, दिस इज अ इनपुट सिंकिंग, और सोर्सिंग करना है अगर, देन वी नीड टू कनेक्ट द स्विच विद द सेंसर। ओके, अब ये सेंसर जो है ये हमारा स्विच के साथ कनेक्टेड है पहले, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो ना, आप इनपुट पिन लिखा हुआ है, दिस इज द इनपुट पिन, ये जो ऑरेंज में है दिस इज द इनपुट पिन। पहले ये थी ऊपर, अब ये हो गई है निचले साइड पे, ठीक है। पॉजिटिव अगर ऊपर थी तो इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही ये कनेक्टेड एक तरीके से स्विच के साथ, थ्रू स्विच। और अगर ये देखा जाए तो ये बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्विच, ठीक है। सिमिलरली सिंकिंग आउटपुट एंड सिंकिंग सोर्सिंग आउटपुट, ठीक है। अगर हमने आउटपुट पे कुछ लगाना है तो आउटपुट पिन इज दिस इज द आउटपुट पिन एंड दिस इज द कॉमन पिन। तो आउटपुट के साथ हमने बल्ब कनेक्ट किया है, और यहाँ पे हम सोर्सिंग में क्या कर रहे हैं, कॉमन पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए वी आर हैविंग अ एनिमेशन, जस्ट सी इट हियर। This is the sinking switch example, and this is the sourcing switch example. Previously in the sinking switch, you can see the lamp is connected with the positive and switch is connected with the negative. Okay, and in the sourcing the switch is connected with the positive end of the power source and lamp is connected with negative. And how it works,
when we press the switch, then the power supply is going towards the negative through switch. So this is the sourcing. Okay, so here is an example that how we can connect something, sensors या किसी भी सेंसर को या किसी इनपुट को, स्विच को कैसे कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ। ये एक पीएलसी का मॉड्यूल है जिसमें हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव सप्लाई जो पीएलसी को जाएगी। अब इसको सपोज हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये सेंसर है। इस सेंसर को कैसे कनेक्ट किया है, इसका एक पार्ट जो है इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव सप्लाई और दूसरा पार्ट जो है ये वाला दूसरा जो पिन है इट इज कनेक्टेड विद द पीएलसी इटसेल्फ। ओके, पीएलसी के जो इनपुट के मॉड्यूल्स होते हैं ना, इनपुट मॉड्यूल होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, 8 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड सेंसर। ओके, सो दिस इज अ सिंकिंग एग्जांपल। और अगर हम सिंकिंग में देखिए क्या हुआ है, मेनली सप्लाई किसको दे रहे हैं हम, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव सप्लाई पहले इसको जाएगी and then it is going towards the sensor and then it is going inside the PLC. Okay, means कि positive is common। अब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई तो हमने यहाँ पे दी है इसको, ठीक है जी, मॉड्यूल को। ओके, एंड द ग्राउंड इज कॉमन, और दोनों का कॉमन करके ग्राउंड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। लेकिन पहले क्या था कि दोनों का जो सोर्सिंग सिंकिंग में क्या था, दोनों का कंबाइंड पॉजिटिव आ रही थी। ये देखिए रेड वाली लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से पॉजिटिव आया और यहाँ से दोनों सेंसर्स की इनपुट को जा रहा है, और यहाँ पे सोर्सिंग में दोनों सेंसर्स की जो वैल्यूज हैं, ये जो ब्लू में आप देख रहे हो दैट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड। तो ये सोर्सिंग ऑपरेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द लैडर डायग्राम, we will discuss it later। okay, that's all for today।